کون ہے؟ تو سب سے زیادہ انسان کا قریبی رشتہ دار اگر کوئی ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ان سے زیادہ قریبی رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اور جو جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہوا کرتا ہے۔ جتنا قریبی ہو اتنا ہی اس کا حق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے حقدار ماں باپ ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ قریبی بیوی ہوتی ہے، پھر بیوی زیادہ حقدار ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہے وہ زیادہ حقدار ہے، پھر اس سے زیادہ قریبی رشتہ دار اس کے بھائی اور بہن ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، پھر اس کے بعد اس کے چچا اور پھپھو ہیں، یہ اس کے قریبی رشتہ دار زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے خالہ اور ماموں ہیں، یہ وہ زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، یہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے پہچانے، کون ہمارا قریبی رشتہ دار ہے اور کون زیادہ قریب ہے۔ جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہوا کرتا ہے۔ تو آپ ان کا حق پہلے پہچانے۔ اب اس کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے جب جان لیا کہ ماں باپ سب سے زیادہ قریبی ہیں تو پھر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ ان کا حق جانے، ان کے حقوق جاننے کی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں کہ گھر گھر میں خانہ جنگی چل رہی ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں، فساد ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بہن میں لڑائی ہو رہی ہے، شوہر اور بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جا رہی ہے۔ آخر یہ فساد کیوں بھرپا ہے؟ گھر گھر میں لڑائی کیوں ہے؟ جنگ کا میدان کیوں بنا ہوا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے لا علمی اور انسان کی ناجانکاری ہے۔ یہ لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر یہ فساد برپا ہو رہا ہے۔ اگر وہ بندے کو معلوم ہوتا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور ان کے حقوق وہ ادا کرتا، اگر شوہر کو پتا ہوتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور اس کے حق ادا کرتا، اگر بیوی کو معلوم ہوتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں اور وہ شوہر کا حق ادا کرتی، اگر بھائی کو معلوم ہوتا کہ بہن کا حق کیا ہے اور اپنی بہن کا حق ادا کرتا، اگر بہن کو معلوم ہوتا کہ بھائی کا حق کیا ہے اور وہ اپنے بھائی کا حق ادا کرتے، اگر مالک کو معلوم ہوتا کہ مزدور کا حق کیا ہے اور وہ مزدور کا حق ادا کرتا، اگر مزدور کو معلوم ہوتا کہ مالک کا حق کیا ہے اور وہ اپنے مالک کا حق ادا کرتا، تو آج یہ جھگڑے اور فساد نہ ہوتے اور گھر گھر میں خانہ جنگی کا ماحول نہ بنا ہوتا۔ تو ہمیں صرف جاننے کی ضرورت ہے، حقوق پہچانے، کس کس کے کون کون سے حقوق ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کے حقوق کیا ہیں یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، بھائی بہن کے حقوق کیا ہیں یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے، راستے کے حقوق کیا ہیں یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، جانوروں کے حقوق کیا ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس نے جانوروں تک کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ تو ذرا سوچو، پھر انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے حقوق کی تعلیم قرآن بھلا کیوں نہیں دے گا؟ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے۔ تو اب کو ہم نے دین کو تو بڑا آسان سمجھ لیا ہے، ہمیں تو شوق ہی نہیں ہے اس کو سیکھنے کی، دین کا علم ہم سیکھیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ آج شادی کرنے کے لیے ہمارے نوجوان من میں لڈو پھوٹتے رہتے ہیں کہ بس کتنے بے شرم اور بے باک اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ سے کہہ دیتے ہیں کہ بس ہماری شادی کرو۔ اتنی ڈھٹائی، اتنی نڈرتا، شرم حیا نام کی چیز رہ نہیں گئی۔ لیکن میں کہتا ہوں شادی کرنا ٹھیک ہے، تمہاری عمر ہو گئی، شادی کرنی چاہیے، ماں باپ کا فریضہ بھی ہے کہ اب اولاد کی شادی کریں، لیکن نادان شادی کرنے سے پہلے بیوی کے حقوق تو معلوم کر لیتا۔ جس لڑکی کو تو اپنے گھر میں لانے والا ہے بیوی بنا کر،
جس کو تو مہمان بنا کر اپنے گھر لانے والا ہے، پہلے اس کے حقوق معلوم کر لیتا کہ اس کے حقوق کیا کیا ہیں، اس کو لانے کے بعد اسے کیا کیا دینا پڑے گا، اس کی کون کون سی ضرورت پوری کرنے پڑے گی۔ نہیں، اس نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس نکاح کے لیے تیار ہو گیا، اور ماں باپ بھی اس کے سر پر صحرا سجا دیے، مارے خوشی کے بینڈ باجا ڈی جے بجاتے رہے، ناچتے کودتے رہے، لے کر گئے ایک غریب کی لڑکی کو اپنے گھر لے کر چلے آئے، اور پھر لانے کے بعد اس کے حقوق کو نہ ماں باپ نے پہچانا، نہ اس نالائق اولاد نے پہچانا، اور لانے کے بعد ایک غریب کی بیٹی کو اپنے گھر میں ستاتے رہے، اس پر ظلم کرتے رہے، آخر طلاق دے کر طلاق کی نوبت آئی، طلاق دے کر، اور وہ بھی جب 2 بچے 4 بچے ہو گئے تب طلاق دے کر اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ ارے نادانو، شادی کرنے سے پہلے حقوق معلوم کر لو، اور اس کے بعد ذمہ داریاں تمہاری کیا ہیں وہ معلوم کر لو، تاکہ آگے چل کر کوئی فساد پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ اولادیں تھیں، شادی کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر پہلے شوہر کے حقوق معلوم کرتی، اگر بچی ہوتی تھی تو پہلے شوہر کا حق معلوم کرتی تھی کہ شوہر کے حقوق کیا کیا ہوتے ہیں، اگر وہ لڑکا ہوتا تھا تو نبی کی بارگاہ میں جا کر بیوی کے حقوق پوچھتے تھے، یا رسول اللہ بیوی کے کون کون سے حق ہیں تاکہ شادی کرنے کے بعد اسے ادا کر سکے۔ مگر آج کی اولادیں ہیں، مسلمانوں کی اولادیں جو کہتے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج وہ لوگ یہ سیکھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ آئیے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جاءت امرات الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، انا فلانۃ بنت فلانہ، یا رسول اللہ میں فلانہ بنت فلاں ہوں، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قد عرفتک فما حاجتک، میں تجھے پہچانتا ہوں، بتا تیری حاجت کیا ہے، تیری ضرورت کیا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے، قالت حاجتی یا رسول اللہ، میری حاجت اور میری ضرورت یہ ہے، ان ابن عمی فلان العابد، یا رسول اللہ میرے چچا کا فلاں بیٹا جو عابد ہے، بڑا پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، قالا قد عرفتہ، اللہ کے نبی فرماتے میں اسے بھی جانتا ہوں، اسے بھی پہچانتا ہوں، بتا تیری ضرورت کیا ہے، تیری حاجت کیا ہے۔ قالت یخطبنی، یا رسول اللہ اس نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اس نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اور میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں، اخبرنی ما حق الزوج علی الزوجہ، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک بیوی پر شوہر کے کون کون سے حقوق ہوتے ہیں، ایک بیوی پر شوہر کے کون کون سے حقوق ہوتے ہیں۔ یہ حقوق معلوم کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور پھر کہتی ہے کہ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ أُطِيقُهُ أَتَزَوَّجُ، یا رسول اللہ اگر میرے بس میں ہوا تو میں اس سے نکاح کروں گی، وَإِنْ لَمْ يُطِقْهُ لَا أَتَزَوَّجُ، اور اگر میرے بس میں نہ ہوا تو میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، وہ عورت کہہ رہی یا رسول اللہ آپ شوہر کے حقوق بتائیے کہ شوہر کے کون کون سے حق ہیں، اگر مجھ میں طاقت ہوگی اس کا حق ادا کرنے کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی، تو میں اس سے نکاح کروں گی، اور اگر مجھ میں طاقت نہ ہوگی تو میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گی، ایسے ہی رہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حق الزوج علی الزوجہ، کہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان دمن او کیہن او صدیدن فلا حسدہ بلسانہا ما عدت حقہ، اللہ کے نبی نے سارے حقوق نہیں بیان کیے، صرف ایک حق بتایا کہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کے بدن سے خون بہ رہا ہو، پیپ یعنی مواد بہ رہا ہو، اور شوہر قے کر رہا ہو، الٹی کر رہا ہو، اور بیوی اپنی زبان سے اسے چاٹے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔
پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ شوہر کے جسم سے خون بہ رہا ہو، مواد پھوڑے پھنسیوں سے جو پیلے رنگ کا مواد بہتا ہے نا وہ بہ رہا ہو، شوہر الٹی کر رہا ہو، کئی کر رہا ہو، پت کی ہو، سفرا کی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیوی اسے اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ تو اب ذرا جواب سنیے گا۔ اب وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ والذی خلق باسکا، یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ لا اتزوج ما بقیت من الدنیا، یا رسول اللہ اب میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گی جب تک دنیا میں موجود رہوں گی۔ اب ذرا غور کیجئے، اس خاتون نے زندگی بھر نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ اس کے بس میں نہیں تھا شوہر کا حق ادا کرنا۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج لوگوں نے آسان سمجھ لیا، بس سنت رسول ہے نکاح کرنا، سنت رسول ہے، بس یہی ایک سنت سمجھ میں آئی لوگوں، اس کے علاوہ اور سنتیں نہیں سمجھ میں آئی۔ بیوی کے حقوق معلوم نہیں کر سکا۔ اچھا جب اس کا نکاح پڑھایا گیا نا، جب نکاح پڑھایا گیا، ایک امام صاحب ایک عالم آئے نکاح پڑھانے کے لیے، اور جب انہوں نے کہا کہ تمہارا نکاح 786 روپیہ سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ کے، اب تو 7786، تو جب خطیب نے، امام نے، قاضی نے جب کہا کہ اتنے کے بدلے تمہارے ساتھ فلاں کی لڑکی اس کا نکاح کیا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے؟ بس جھٹ سے کہہ دیا قبول ہے، مطلب نہیں سمجھا۔ اگر اس سے پوچھ لیا جائے بھائی علاوہ نان و نفقہ کا مطلب کیا ہے تو بتا نہیں پائے گا، سکہ رائج الوقت کیا ہے پتہ نہیں، مطلب نہیں سمجھا، بس قبول ہے، میں نے قبول کیا۔ سب سے پہلے معلوم تو کر لیتے یہ شرط جو رکھی جا رہی ہے یہ کیسی شرط ہے، تمہارے بس میں ہے کہ نہیں ہے، اس کو معلوم تو کرنا تھا پہلے۔ کسی امام سے، کسی عالم سے جا کے پہلے پوچھ لیا ہوتا، تراویح والے حافظ جی سے پوچھ لیتے۔ اب 7786 روپیہ سکہ رائج الوقت۔ اب رائج الوقت کا مطلب کیا ہے؟ سکہ رائج الوقت جو موجودہ وقت میں سکہ چل رہا ہے، جو روپیہ پیسہ چل رہا ہے۔ انگریز کے زمانے کا سکہ لا کے دے دو گے چلے گا؟ موجودہ وقت کا روپیہ چاہیے، یہ پہلی شرط۔ اس کے بعد علاوہ نان و نفقہ کے، نان کے معنی ہوتا ہے روٹی، نفقہ کے معنی ہوتا ہے خرچ۔ تمہیں 2 وقت کا کھانا بھی اسے دینا ہے، رہنے کے لیے اسے مکان بھی دینا ہے، اس کے علاوہ اسے خرچ بھی دینا ہے، آپ کو کپڑا بھی اسے دینا ہے، لباس بھی دینا ہے، یہ شرط رکھی گئی ہے۔ اگر یہ شرط تمہیں منظور ہے کہ اگر تم اسے لباس دے سکتے ہو، اگر 2 وقت کا پیٹ بھر کا کھانا اسے کھلا سکتے ہو، اس کے علاوہ اس کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہو، اس کا نفقہ، اس کا خرچ دے سکتے ہو، اگر بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت تمہارے اندر ہے تو نکاح قبول کرو ورنہ بارات واپس لے کر جاؤ۔ مطلب تو نہیں سمجھا مگر قبول کر لیا۔ آج یہ مطلب جان لو، حیثیت نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی طاقت نہیں ہوتی، مگر نکاح کر لیا اور لانے کے بعد بیوی کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ کچھ ایسے ہیں جن کی بیوی کا خرچہ بھی ماں باپ اٹھا رہے ہیں، یہ حال ہے۔ تو بہرحال شوہر کے حقوق کیا ہیں آپ جان لیں کہ بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز۔ شوہر کا سب سے پہلا حق کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا سب سے پہلا حق ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری، اس کی اطاعت اور رضا جوئی، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور ہر عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی ہر جائز بات کو مانے۔ میں ناجائز بات کی بات نہیں کر رہا، اپنے شوہر کی ہر جائز بات کو مانے۔ اگر شوہر کسی جائز کام کا حکم دے رہا ہے تو اس پر ماننا لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی
नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मातत इमरातुन व ज़ौजुहा अनहा रादिन दखलतिल जन्ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो औरत इस दुनिया से जाए, जो औरत मर जाए और मरते वक्त उसका शौहर उससे राजी था, तो वो औरत जरूर जन्नत में दाखिल होगी, जन्नत में जाएगी। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरत को जन्नत के लिए जन्नत की बशारत दी है कि मरते वक्त उसका शौहर उससे राजी रहा हो। तो जिसका शौहर उससे राजी रहा और वो औरत इस दुनिया से गई तो वो जरूर जन्नत में जाएगी, लेकिन जिसका शौहर नाराज रहा हो वो औरत जहन्नम में जाएगी। आइए देखिए एक और हदीस पाक जिसे अल्लामा हाफिज अबू नईम ने अपनी किताब हुलिया में नकल फरमाया है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत चार काम करे, जो औरत चार काम करे, पहला रमजान के महीने का रोजा रखे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाद, फिर जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। फरमा रहे हैं कि जो औरत 4 काम करे, सिर्फ 4 काम बताया अल्लाह के नबी ने, जो औरत 4 काम कर ले तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। सबसे पहला काम इज़ा सल्लत खम्सहा, 5 वक्त की नमाज अदा करे, वह हसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, वह सामत शहरहा, रमजान के महीने का रोजा रखे, वह अताअत बालहा, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। कितना आसान काम अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिर्फ 4 काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अब सुनो जन्नत में दरवाजे कितने हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं समानियतु अबवाबिन फिल जन्ना, जन्नत में 8 दरवाजे हैं और उन दरवाजों के नाम अलग अलग हैं और उन दरवाजों से अलग अलग लोग दाखिल होंगे। किसी दरवाजे से ज़कात वाला जाएगा, किसी दरवाजे से सदका वाला जाएगा, किसी दरवाजे से नमाज वाला जाएगा, किसी दरवाजे से हज वाला जाएगा, किसी दरवाजे से जिहाद वाला जाएगा। तो हर एक के दरवाजे अलग अलग होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फमन काना मिन अहली सदका दुया मिन बाबिस सदका वमन काना मिन अहली सलात दुया मिन बाबिस सलात वमन काना मिन अहली जिहाद दुया मिन बाबिल जिहाद वमन काना मिन अहली सदका दुया मिन बाबिस सदका वमन काना मिन अहली सियाम दुया मिन बाबिल रैयान। कि जो नमाजी होगा वो नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो जिहादी होगा वो जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो सदका देने वाला सखी होगा वो सदका के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो रोजादार होगा वो बाबे रैयान से बुलाया जाएगा। तो पता चला कि हर एक अपने अपने मखसूस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा। कोई हाजी नमाजी के दरवाजे से नहीं दाखिल हो सकता, कोई सखी किसी रोजादार के दरवाजे से नहीं जा सकता, हर एक अपने अपने दरवाजे से दाखिल होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दरवाजे में लोगों के लिए अलग अलग इनामात रखे हैं। मगर कुर्बान जाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत कितनी खुश नसीब है कि जिसको इजाजत दी जाएगी कि वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। कुछ इमाम ऐसे हैं जिनका रमजान के महीने में 30 दिन पीरियड रहता है, रोजा बिल्कुल गायब। हमें क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है भाई? रोजा तो तभी माफ हो सकता है जब पीरियड से हो, इसके अलावा तो रोजा माफ नहीं है। हाँ, कुछ परेशानियां हैं जिनमें माफ होता है, लेकिन वो शदीद हो, किसी काबिल तबीब या हकीम ने बताया हो तब तो माफ हो सकता है। जान जाने का खतरा हो, मर्ज के बढ़ जाने का अंदेशा हो, जिससे जान हलाकत का अंदेशा हो, तब तो रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है। अच्छा है, अभी हफ्ता भर महीने का रोज़ा किसी पर माफ नहीं है, समझ रहे हैं?
ये फर्ज करार दिया गया है। हाँ, नफिल रोजे आप ना रखो कोई बात नहीं, शबे बरात का रोजा ना रखो, शबे मेराज का रोजा ना रखो, आशूरा का रोजा ना रखो, कोई बात नहीं, नफिल रोजा है, रखोगे तो सवाब मिलेगा, तरक्की दर्जात में इजाफा होगा, और ना रखोगे तो कोई गुनाह भी नहीं। लेकिन रमजान के महीने का रोजा अगर ना रखा तो बड़ी सख्त अजाब है और इस पर वईद भी है ना, ये किसी पर माफ नहीं है। जो आदमी शरई तौर पर माजूर हो सिर्फ उसी पर रोजा माफ होता है। अब 3 टाइम पेट भर के बंदा खा रहा हो और फिर उज्र करता पेश करे कि नहीं मैं परेशान हूं, मुझे तकलीफ है, और रोजा छोड़ दे, ये रोजा खोर है, रोजा खोर और रोजा चोर इसको कहते हैं। जरा ये सोचना चाहिए कि अवाम पर क्या मामला भी, इससे उसके इस हरकत से अवाम पर क्या असर पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, इसका भी ख्याल करना है। चलो ठीक है, अपने घर का मामला है वहाँ अलग है, मदरसे में जब तक थे तब तक वहाँ का मामला ठीक था, लेकिन अब अवाम के बीच में आप तबलीग के लिए निकले हैं, अवाम के बीच में इस्लाह के लिए अब आप निकले हैं, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद अपनी हिफाजत करें और अवाम की भी हिफाजत करें। लेकिन अगर खुद आप मुलव्विस हो जाएंगे तो फिर अवाम की हिफाजत कौन करेगा? इसलिए जरूरी है कि अपने किरदार व अमल को पहले दुरुस्त करें, फिर अवाम को नसीहत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, लिमा तकुलु मा तफअलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। तो पता ये चला कि सबसे पहले खुद करने की जरूरत है, फिर दूसरे को बताने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़कर देख लो, अल्लाह के नबी ने 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया तो कोहे शबीर पर खड़े होकर अल्लाह के नबी ने सबसे पहले पूरे मक्का वालों से अपने किरदार का लोहा मनवाया। अल्लाह के नबी ने लोगों से सबसे पहले यही पूछा, ऐ लोगों ये बताओ क्या मैं जो बात कहूंगा तुम उसे सच मानोगे, क्या तुम उस पर यकीन करोगे? तो तमाम लोगों ने यही कहा था कि हाँ या रसूल अल्लाह, यकीनन हम आपकी बात को सच मानेंगे, क्योंकि आज तक आपने कभी झूठ नहीं बोला है, आज तक आपने कभी झूठ नहीं बोला। हमें नबी का बचपन उन्हीं मक्का वालों में गुजरा, नबी की जवानी उन्हीं मक्का वालों में गुजरी, 40 साल की जिंदगी मक्का के काफिरों के बीच अल्लाह के नबी ने गुजारी, और मक्का के बड़े बड़े धुरंधर काफिर अल्लाह के नबी के किरदार का लोहा मानते थे। वो खुद इकरार करते हैं कि अल्लाह के नबी की जबान से कभी झूठ नहीं निकला। तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले अपने कैरेक्टर का, अपने किरदार का लोहा मनवाया। जब लोगों ने मान लिया उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओ। हम दिखावे के लिए ही करो, ये अलग बात है कि दिखावे पर कोई सवाब नहीं, दिखावे पर कोई सवाब नहीं, रियाकारी पर कोई बदला नहीं, मगर हाँ अवाम की इस्लाह के लिए ये भी तो हो सकता है। दिखावा तो कर ही सकते हो, ये क्या खामखा जरूरी है जाहिर करना? अभी रमजान के महीने में अक्सर उलमा बयान करते हैं, एक यहूदी मजूसी का लड़का रमजान के महीने में खा पी रहा था बाजार में, उस यहूदी ने थप्पड़ मारा अपने बच्चे को, कहा नादान तुझे पता नहीं मुसलमानों का रोजा चल रहा है और तू खुलेआम खा पी रहा है, मुसलमानों को ईजा देता है, तकलीफ देता है। फिर वो यहूदी, वो मजूसी जो था वो मर गया। मरने के बाद बुखारा के बुजुर्गों ने उसे ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में आलीशान मकाम पर मौजूद है, उसके सर पर ताज रखा हुआ है, जन्नत के सुनहरे तख्त पर बैठा है। लोगों ने पूछा, बुजुर्गों ने पूछा, तू तो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला, आतिश परस्त था, मुसलमान नहीं था, जन्नत में कैसे पहुंच गया? तो कहने लगा ठीक है मैं मुसलमान नहीं था, मगर मैंने रमजान के महीने का एहतराम किया, रमजान के महीने का अदब किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरते वक्त मुझे कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक दी, मैं कलमा पढ़कर मरा, इसलिए अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। तो रमजान के महीने का एहतराम करने पर एक काफिर, एक मजूसी, एक आतिश परस्त अगर रमजान के महीने का एहतराम करता है, अल्लाह उसे दौलत ईमान से सरफराज फरमाता है और जन्नत भी अता फरमा देता है। कितना बेगैरत मुसलमान है कि रमजान के महीने में भी रोजा नहीं रखता और खा पीता है। आज लोग इतने बेखौफ, इतने निडर हो गए हैं, खुले आम पान चबाते हुए घूमते हैं रमजान के महीने में। अरे नादानो, शुक्र करो कि इस्लामी हुकूमत नहीं है ना। अगर इस्लामी हुकूमत होती ना तो ऐसे लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है कि जो रोजा ना रखे, ऐलानिया तौर पर खाए पिए उसे कत्ल कर दिया जाए।
गर्दनें मार दी जाती, मगर शुक्र करो कि ये दारुल हर्ब है, बचे हुए हों। आज तबाही और बर्बादी जो हमारे कदम चूम रही है ना, इसका नतीजा यही है, हमारी बदअमलियाँ। हम नमाज से कोसों दूर हैं, मस्जिद तक जा नहीं सकते, है ना। मस्जिद के लिए जान देने को तैयार है, सर कटाने को तैयार है, मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं है। किस मुंह से कहता है कि हम गुलाम रसूल है, दाखिल हो जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। अब देखिए, 2 हदीसें मैंने बयान की। एक तो ये कि जब औरत मरे और उसका शौहर राजी हो तो वो औरत जन्नत में जाएगी। अब सुनिए, एक खातून का इंतकाल हुआ, नहीं इंतकाल नहीं हुआ, बनी इसराइल में एक बूढ़ी औरत थी, उसका इकलौता बेटा था, वो बीमार हो गया। अब जब बीमार हुआ तो उसने मन्नत मान ली, कहा अल्लाह अगर तूने मेरे बेटे को शिफा दे दी, मेरा बेटा तंदुरुस्त हो गया, तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ दूंगी, ये नहीं कि मुल्क छोड़ दूंगी, देश छोड़ दूंगी, नहीं, 7 दिन के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। अभी वो जिंदा है, मरी नहीं, मन्नत उसने मान ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बेटे को शिफा दे दी, उसे तंदुरुस्ती मिल गई। अब वो बूढ़ी औरत अपनी मन्नत पूरी करती, अपने बेटे से कहा बेटे मुझे ले चलकर दफन कर दो और 7 दिन के बाद मुझे कब्र से निकालना। अब बेटा अपनी माँ की इस मन्नत को पूरी करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया और उसे कफन वगैरह पहनाया गया, जनाजे की तरह उसे लेकर चला गया और ले जा करके कब्र खोदी गई। कब्र में ले जाकर उसे लिटाया गया, तख्ता बिछा दिया गया, ऊपर से मनो मिट्टी डाल दी गई, दफन करके लोग वापस हो गए, बेटा भी वापस आ गया। 7 दिन गुजर गए। अब सुनिए कब्र के अंदर क्या हाल हो रहा है। कब्र के अंदर जब वो बूढ़ी औरत गई तो उसने देखा कि एक दीवार में जरा सा सुराख है, उस सुराख से उसने झांक कर देखा, दरवाजा खुला हुआ है, एक आलीशान बाग है, एक खूबसूरत बाग है, उसमें नहरें बह रही है, अच्छे अच्छे दरख्त हैं और उस दरख्त के साए में 2 औरतें बैठी हुई है। उसने देखा कि एक खातून के सर पर एक परिंदा है जो अपने पर से हवा दे रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा है जो अपने चोंच मार रहा है और उसके सर पर ठोकर लगाकर उसे जख्मी कर रहा है, उसे तकलीफ दे रहा है, गोया कि उस पर अजाब दिया जा रहा है, अजाब में मुलव्विस है। तब वो खातून उसी दीवार के सहारे से उस बाग में दाखिल होती है और उन दोनों औरतों के पास जाती है और जाने के बाद उस औरत से पूछती है जिसके सर पर परिंदा हवा दे रहा था, उससे पूछती है ये बताओ ये इनाम तुम्हें कैसे मिला, ये इनाम किस अमल की बिना पर मिला है। तो औरत कहने लगी ऐ बूढ़ी माँ, जब मैं दुनिया से आई थी तो मेरा शौहर उस वक्त मुझसे राजी था, इसलिए अल्लाह ने मुझे इनाम दिया है, ये परिंदा कयामत तक मेरे सर पर हवा देता रहेगा, पंखा झेलता रहेगा। अब उसने दूसरी औरत से पूछा कहा ये अजाब तुझे क्यों दिया जा रहा है, किस बदअमली की बिना पर ये सजा मिल रही है। तो कहने लगी ऐ बूढ़ी माँ, जब मैं मरी थी और दुनिया से जब मैं रुखसत हुई थी उस वक्त मेरा शौहर मुझसे नाराज था, इसलिए मुझे ये सजा दी जा रही है, ये अजाब दिया जा रहा है, कयामत तक ये परिंदा मेरे सर पर चोंच मारता रहेगा। अब वो बूढ़ी औरत से कहती है कि ऐ बूढ़ी माँ तुम तो 7 दिन के लिए आई हो, अब 7 दिन के बाद तुम वापस दुनिया में जाओगी तो फला मकाम पर फला जगह मेरा घर है, जाकर मेरे शौहर से कह देना कि वो मुझे माफ कर दे, पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अब वो खातून उसके 7 दिन पूरे हो गए, बेटा गया कब्र उसने खोली और कब्र खोलने के बाद अपनी बूढ़ी माँ को कब्र से निकाला। अब वो जब कब्र से निकलकर वापस आई अपने घर तो अपने घर नहीं गई, सबसे पहले उसी खातून के शौहर के पास गई और जाकर उसे सारा माजरा सुनाया और कहा तुम अपनी बीवी को माफ कर दो,
تو शौहर ने जब सुना तो उसने कहा कि जाओ, मैंने अपनी बीवी की खताओं को माफ कर दिया, उसकी गलतियों को माफ कर दिया। अब वो बूढ़ी औरत आई, रात को जब सोई तो ख्वाब में देखा वही औरत जिसको सजा दी जा रही थी, अजाब दिया जा रहा था, अब वो अजाब से छुटकारा पा चुकी थी और वो भी जन्नत के ऐशो-आराम में मौजूद थी। तो जाते गिरामी जरा अंदाजा लगाएं कि शौहर अगर नाराज हो तो औरत अजाब में मुब्तला होती है और वो जहन्नमी हुआ करती है। इसलिए जरूरी है कि शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी हर हाल में की जाए। ये सबसे पहला हक है शौहर का कि उसकी इताअत और फर्मा बरदारी की जाए। अच्छा, मैंने एक बात कही कि जायज बातों में, नाजायज बातों में इताअत नहीं, फर्मा बरदारी नहीं। बहुत से शौहर हैं जो बीवी को नाजायज कामों का हुक्म देते हैं, तो अब जरूरी नहीं है कि औरत उनकी बात माने। मैं दावे के साथ कहता हूँ, औरत को उसकी इस बात को मानना जरूरी नहीं है। अल्लाह के नजदीक वो गुनहगार नहीं होगी अगर उसकी बात को ठुकरा दे। अब मिसाल के तौर पर कैसी नाजायज बात का हुक्म दे, अगर शौहर बीवी से कहे कि नमाज ना पढ़े तो औरत को जरूरी नहीं कि उसकी बात माने, क्योंकि यहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अगर शौहर की फर्मा बरदारी करेगी तो अल्लाह की नाफरमानी होगी, उसके रसूल की नाफरमानी होगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं की जा सकती। तो हज़रात गिरामी, अगर शौहर कहे कि बीवी नमाज ना पढ़े तो बीवी पर जरूरी नहीं कि उसकी बात माने। अगर शौहर रोजा रखने से मना करे तो जरूरी नहीं है कि वो शौहर की बात माने। अगर शौहर कहे कि उसके देवर, उसके जेठ या उसके दोस्तों के सामने बेपर्दा होकर आए तो औरत पर जरूरी नहीं है कि अपने शौहर की बात माने, उसकी बात को ठोकर मार दे। कसम खुदा की वो औरत अल्लाह के नजदीक गुनहगार कभी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि उसने एक नाजायज काम का हुक्म दिया है। अक्सर आज लोग अपनी बीवी को दोस्तों के सामने पेश करते हैं, है ना, दिखाने के लिए। तो ये नाजायज नहीं, हराम नहीं, गैर महरम के सामने उसे पेश किया जा रहा है, ये नाजायज व हराम नहीं। तो एक नाजायज काम का हुक्म दे रहा। अगर बीवी इनकार कर दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं और शौहर उस पर कुछ कर भी नहीं सकता। शरीयत इजाजत नहीं देती है कि जबरन या जबरदस्ती उसे पेश करे किसी के सामने, है ना, क्योंकि पर्दा जरूरी है, लाजमी है। देवर उसके लिए मौत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह देवर के बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलहमाउल मौत, देवर तो मौत है, देवर मौत है। बड़े अफसोस की बात है कि आज भाभियां देवर को गोद में बिठा लेती है और इसके कितने भयानक नताइज सामने आते हैं ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जिससे पर्दा मौत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिससे मौत से आदमी भागता है ऐसे देवर से भाभी को भागना चाहिए, औरत को भागना चाहिए। जब देवर को मौत के बराबर कहा गया है, अब जरा सोचिए कि इससे लोगों से जब हंसी और मजाक किया जाता है तो आप सोचिए कि इसके नताइज क्या होंगे और इसका अंजाम क्या होगा। अब ज़ात गिरामी कुरान पाक पढ़कर देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान क्या है कुरान पाक में कि औरत गैर महरमों से जब बात करे तो किस तरह करे। फला तखदा मिन कौल, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि नरमी इख्तियार ना करो उनसे बात करने में, गैर महरमों से बात करने में नरमी इख्तियार ना करो। बात में लचक नहीं आनी चाहिए। अगर औरत गैर महरम से बात कर रही है ना, किसी अजनबी से बात कर रही है, बात में लचक नहीं आनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐसा ना हो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे, है ना। आए तो मुझे पूरी नहीं आते सही से, फला तखदाना मिन कौल, है ना। आगे क्या है, बहरहाल उसका मफहूम मैं बता दे रहा हूँ कि दिल का रोगी कुछ लालच करे। बहुत से मरीजुल कल्ब, बहुत से दिल के रोगी घूम रहे हैं गलियों में, है ना। जैसे ही किसी लड़की ने या किसी औरत ने नरमी से बात कर ली, मुस्कुरा के हंस के बात कर लिया ना, ये दिल का रोगी, इसका रोग उभर आता है फौरन। ये समझ जाता है कि बस लाइन पे आ गया। कुरान ने इतनी सख्ती से मना किया औरतों को कि गैर महरमों से बात करो तो बात में लचक ना हो, नजाकत ना आने पाए, नरमी नहीं होनी चाहिए बात में। गैर महरम से बात करो तो सख्ती के साथ बात किया करो। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी माँ और बहनें, हमारे समाज की औरतें जब गैर महरमों से बात करती हैं तो हंस हंस के ठट्ठा करके बात करती हैं, और वही जब शौहर से बात करेंगे तो मुंह बिगाड़ कर बात किया करती है।
कितने अफसोस की बात ये है कि जिनसे पर्दा करना चाहिए, जिनसे सख्ती इख्तियार करना चाहिए, उससे सख्ती नहीं इख्तियार कर रही है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, और यहाँ एक लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर्दे का हुक्म दिया वहाँ लफ्ज़ तबर्रुज फरमाया है, वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तबर्रुज, ये तबर्रुज क्या है? लफ्ज़ तबर्रुज जब औरत के लिए बोला जाता है तो इसके 3 मतलब होते हैं। लफ्ज़ तबर्रुज जब औरत के लिए बोला जाता है तो इसके 3 मतलब और 3 माना होते हैं। सबसे पहला मतलब ये है कि वो अपने जिस्म और अपने हुस्न की नुमाइश करे, अपने जिस्म और अपने हुस्न की नुमाइश करे, लोगों को दिखाए। दूसरा मतलब इसका होता है कि वो अपने जेवर और अपने लिबास को नुमाया करे, लोगों पर जाहिर करे और उसकी शान जाहिर करे। अब आप जरा देखते जाइएगा कि एक पहली बात, पहला मतलब तो ये है कि अपने चेहरे और अपने जिस्म की नुमाइश करे, लोगों को दिखाए। दूसरा माना और मतलब ये है कि अपने जेवर और अपने लिबास की शान लोगों पर जाहिर करे। और तीसरा मतलब ये है कि अपने लटक झटक से, अपने चटक मटक से लोगों में नुमाया करे, अपने आप को जाहिर करे। 3 माना है इसके तबर्रुज के, और ये तीनों चीजें आज औरतों में पाई जा रही है, तीनों चीजें पाई जा रही हैं। अब जरा देखिए इनका मामला, चेहरे की नुमाइश, चेहरे को ऐसे लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, खूबसूरत दिखने के लिए न जाने क्या क्या कर रही हैं। एब्रू सेट कराया जा रहा है, भावों के बालें इसको छिलवाई जा रही, कटवाई जा रही है ना। उसके बाद मेकअप तो न जाने कैसा कैसा मेकअप किया जा रहा है कि एक तो काला काला डामर जैसा पता नहीं कैसा लगा के भूतनी बन जाती है। मैंने फेसबुक पे अभी देखा था, ये एक औरत उसने काला काला डामर जैसा लगाया होता, उसका अपना बच्चा देखा तो डर गया, रोने लगा उसका। अब जरा सोचिए, ऐसा ऐसा मेकअप इस्तेमाल किया जा रहा है खूबसूरत बनने के लिए, है ना, और फिर लोगों पर नुमाइश करने के लिए, नुमाया करने के लिए। जिस्म की नुमाइश तो आप देख ही रहे हैं किस हाल में लोग हैं, है ना। बच्चियों की अच्छी तरबियत आज लोग नहीं कर रहे हैं, तरबियत इस्लामी तरीके पर नहीं की जा रही है, और इसका नतीजा आगे चलकर उनको भुगतना पड़ता है। कल आगे चलकर जब उसके नताइज सामने आते हैं, फिर वही माँ बाप चिल्लाते फिरते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, हमारी बच्ची ऐसा कर गई। अरे नादान, पहले तूने होश के नाखून क्यों नहीं लिए? पहले तूने ख्याल क्यों नहीं किया? पहले उसे इस्लामी तरबियत में ढाला क्यों नहीं? आइए मैं आपको बताऊं बच्चियों की तरबियत कैसे लोग कर रहे हैं। अबे छोटी सी बच्ची, 6-7 साल की बच्ची, उसे जीन्स पैंट पहनाया जा रहा है, उसकी ऐसी तरबियत की जा रही है, गैर इस्लामी लिबास पहनाया जा रहा है, उसे टी शर्ट पहनाया जा रहा है, बगैर दुपट्टे के उसे घुमाया जा रहा है। अब मुझे बताओ, और जब कहा जाता है तो अरे अभी छोटी बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो सबको सही हो जाएगा। अरे नादान, जिस बच्ची को बचपन से ही तू जीन्स पैंट का शौक दिला रहा है, क्या गारंटी है कि बड़ी होने के बाद वो इस्लामी लिबास पसंद करेगी? बड़ी होने